ठीक है। डेकोरेटर क्या होता है बेसिकली? डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही होता है जो क्या करता है, दूसरे फंक्शन को एज एन इनपुट ले लेता है और क्या करता है, उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करके उसी के अंदर क्या करता है, रिटर्न करता है एक नया फंक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन भी आप देख सकते हो कि फंक्शन क्या करता है, सॉरी डेकोरेटर क्या करता है। डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट रैप्स अनदर फंक्शन मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। क्या करता है, मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। तो और एक दूसरी डेफिनेशन में मैं देता हूँ यहाँ पे। तो a decorator is a function that takes another function or class as an input. It adds some extra functionality to it and returns the modified function with changing its original code, right? ओरिजिनल कोड को क्या करके देता है, चेंज करके देता है आपको। फंक्शन होता है, क्या होता है डेकोरेटर? डेकोरेटर इज अ फंक्शन takes another function or class as an input and adds, and I'm writing a definition here. Decorator is a function that takes another function as an input and it adds some extra functionality to it, right? It adds some extra functionality to it and as input, and it extends, or you can say it modifies. So basically we are learning a function in Python, right? Not function, basically a topic is going on right now which is called decorator. A new topic is here and I am explaining that what is a decorator. So decorator is a function basically which takes another function, or you can say which takes another class as an input and it extends or it's modify its by default behavior, right? It modifies its behavior and it returns the another function, the same as in JavaScript. If you have learned the JavaScript or you have some idea of JavaScript, then you must have known what are the functions. So here is the same concept of functions. So decorator is a type of function basically which takes another function or class as an input and it extends or it modifies the original behavior and returns another function. That's all. Returns a new function, like a gift wrapper basically. So gift is, what is gift? Let's say I have gift. Let me explain in the exactly draw a whiteboard. So let's say you have a gift box, right? This is your gift and it wraps by its wrapper, right? This is your wrapper, the gift wrapper basically. Okay, and now what is this wrapper? This wrapper is basically a decorator. What? Decorator. The wrapper of the gift, of the actual gift, is called a decorator, and the actual gift inside the wrapper is called a function, or else you can say the class. Okay, is called the function. That's all. You know the topic already. What is a function, what is a decorator? So decorator is a wrapper basically which the wrapper the gift inside the wrapper stays the same, but the wrapper is adding some extra functionality to the gift. So these are called decorators in Python. This is the example that I have given to you of like what are decorators in Python. So decorator is a wrapper basically, you can say, like let's take an example of a gift box. So the blue part is your original gift, this part is your original gift, right? And the wrapper around it is called your decorator, and the gift part, the actual gift part, is your function, right? That's it. So the gift function stays the same, means the gift part is same. You can change its wrapper again and again and again, to add some its look, or its, if you want to modify it, you can just change the wrapper, you can just change the things. Yeah, decorators are like more div in CSS, right? You can say that. Not basically div are the containers for storing the element. Div is in HTML, not in CSS. But for styling part, you must have, you need to put your HTML elements inside a div container so that you can do your styling work easily. Okay, so here decorators are basically a wrapper inside a function. Decorators is also a function that takes another function as an input. Okay, and modify its original behavior and returns the another function. That's all. So decorator क्या होता है? एक फंक्शन होता है बेसिकली। क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, दूसरे फंक्शन या फिर क्लास को एज एन इनपुट के तौर पे लेता है। अभी मैं लेके दिखाऊंगा आपको। और क्या करता है, उसका जो बिहेवियर होता है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है ना। जैसे मेरे पास एक गिफ्ट पड़ा हुआ है, राइट? मैं उसको अगर पैकेज कर दूँ अच्छे तरीके से, राउंड अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से कर सकता हूँ, तो क्या होता है, उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, राइट? बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा और वो एक नया एक गिफ्ट बन जाएगा, मतलब बहुत अच्छा खासा गिफ्ट बन सकता है वो, है ना, अगर उसका रैपर वाइज सही से होगा। बस यही था आपका डेकोरेटर्स। ठीक है, कि यही क्या होता है, आपके डेकोरेटर्स होते हैं किसके अंदर? पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन के अंदर।
दैट्स ऑल। और यूज़ केस कहाँ पे कर सकते हो इस डेकोरेटर्स वाले टॉपिक का, लाइक है ना कि भाई इसका यूज़ केस क्या है। यूज़ केस आप बेसिकली ऑथेंटिकेशन में यूज़ केस कर सकते हो, लॉगिंग्स में कर सकते हो, व्हेन यू वांट टू ट्रैक अ फंक्शन रन्स, जब ये फंक्शन चलता है पाइथन का, जब उसको ट्रैक करना होता है आपको, तो वो कर सकते हो इनका यूज़ करके, है ना। और कैश वैश की प्रॉब्लम आती है, उसको जो रिजल्ट्स होते हैं उसको ट्रैक कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। जैसे लॉगिन करना हो बिफोर रनिंग अ फंक्शन, जैसे कोई भी लॉगिन करा तो लॉगिन का फंक्शन चलने से पहले क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन आपको चेक करनी है, तो यहाँ पे डेकोरेटर्स का क्या कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन क्लास एज एन इनपुट एंड इट रिटर्न्स, इट एक्सटेंड्स, मॉडिफाइज इट्स बिहेवियर एंड रिटर्न्स अनदर फंक्शन, या फिर रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन। लेट्स यू कैन से डेकोरेटर और फंक्शन डेकोरेटर, राइट। फंक्शन डेकोरेटर, so we are learning the first function decorator. This is a simple example. Function decorator is a function that takes another function. This is the same thing. Use case I already told you. And the what project you can build using this particular topic is means the projects where you know this particular topic comes as an this particular topic plays an important role. So basically login system with authentication decorator, API request logger and performance track tool. Inside it you can use this. So here I have taken one example. So I have defined one of my decorator with the name my decorator, and it's taking another function as an input, which is named function func, and you can also rename it. And I have defined here wrapper. This is a new function. Okay, so let me write here for you. Okay, लेट मी राइट हियर फॉर यू। पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, राइट। क्या बनाते हैं, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जैसे माई फंक्शन हो गया, या फिर कुछ ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, या माई डेकोरेटर हो गया, लेट्स से माई डेकोरेटर हो गया। माई डेकोरेटर के नेम से मैं फंक्शन का नाम बना लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक डेकोरेटर है ये क्या है, माई, ये एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन, यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन, एंड inside it you are taking another function as an input. So you can say another function as an input, and what you are doing right now here, you are taking a wrapper this time. What you are taking, you are taking wrapper. Okay, so you are defining a wrapper. What is this? This is the new function basically, wrapper function, right. Which will do print. Let's say this is something code, this is some code before executing the main part, before executing the decorator part, or you can say before executing the main code. Okay, so you have defined another function inside this particular function, right. And after this I will call what, I will call my another function here, right here. I'll just call my another function. What is this meaning? Calling the original function basically, right. We will call the original function now. What is the name of the original function, let's say. And after this I'll print something. What is this? Is some code, this is something after executing the decorator, you can say. Okay, this is the codes after executing something. Okay, this is before executing my program, this is after executing my program. I'm printing a string basically. मैं क्या कर रहा हूँ, एक string print करा रहा हूँ यहाँ पे, right. ये जो another function है वो मैंने as an input के तौर पे ले लिया है। इसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है, वो मैं decorators का यूज़ करके मैं क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, यूज़ करते हैं यहाँ पे my decorator, ठीक है, my decorator। सो एक ये आप बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ बना लो, डिफाइन कर लो। लेट्स से हाई नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट वगैरह मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट करा, और दूसरा मैंने रैपर को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं कराया है। लेट मी चेक वंस, लेट मी चेक इफ आई एम गोइंग राइट। हाँ या राइट, रिटर्न रैपर। तो रिटर्न रैपर मैंने क्या करा है, यहाँ पे नहीं कराया है। तो रिटर्निंग द मॉडिफाइड फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन आफ्टर मॉडिफाइंग इट्स ओरिजिनल फंक्शन, यू नीड टू डू लाइक दिस, रिटर्न रैपर। Now it is okay. And after that you need to use my decorator. This means say hello or say something like this, and you can just print hello or something like that. So say hello, and I'll just printing here hello in between something. In between something means between of printing something before the code execute, and this is something after my program finishes, and this is in between something, like. So this is my one of my function, and if I want to modify it, if I want to like modify it, so I'm taking inside this particular function, my decorator function. Okay, and if I will run it, what output will come? Let's see, it's not coming right now. So there is some issue related in our code. I think here is this will come inside it. No, my decorator. Okay, another function. Let me check the code once. तो I didn't call this particular function. Okay, this will work now. ये क्या करेगा, अभी वर्क करेगा। क्या कह रहा है कि say hi
नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्यों नहीं कर रहा है ये कॉल? हाय से हाय इज नॉट वर्किंग, लेट्स check this, what is the problem here? calling decorated function, original function is this, return wrapper भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, and I am printing something, और return wrapper मैं inside of this wrapper कॉल कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, बाहर कॉल करना है इसको, यहाँ पे इस लेवल पे कॉल करना है जहाँ पे मैं रैपर डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, तभी तो ये क्या होगा, कॉल तो फिर उसके अंदर चला गया था वो। ओके तो ये मिस्टेक था। अगर इसको रन करो तो देखो दिस इज समथिंग कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग, ये लाइन प्रिंट होगी, एंड टू एडिंग सम मॉडिफाइंग दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से दिस फंक्शन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक अनदर फंक्शन है मैंने एज एन इनपुट के तौर पे लिया था, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है, और उसकी चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ बाद में, राइट और फिर मैंने क्या कहा, दिस इज समथिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे देखोगे तो कुछ क्या है बाद में आया, और बीच में मेरे एक लाइन प्रिंट होगी क्या, हेलो इन बिटवीन समथिंग, तो ये क्या है, ये वाला फंक्शन किसको इंडिकेट कर रहा है, इस वाले फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेकोरेटर, ठीक है, तो दिस इज माई फंक्शन डेकोरेटर, सो कॉलिंग डेकोरेटेड फंक्शन, ये वाला मेरा क्या है, डेकोरेटेड फंक्शन है, तो एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, अनदर फंक्शन इनपुट, तो ये मेरा एज एन इनपुट के तौर पर अनदर फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड इट्स और मॉडिफाई इट्स बिहेवियर एंड रिटर्न्स एन न्यू फंक्शन, एक न्यू फंक्शन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे रैपर के नाम से रिटर्न करा दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपके पास डेकोरेटर्स के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। फंक्शन डेकोरेटर होता है, क्लास डेकोरेटर होता है, इसके अंदर क्या लेता है, कोई दूसरे फंक्शन को, या मतलब एक ये भी एक फंक्शन ही है जो दूसरे फंक्शन को लेता है एज एन इनपुट के तौर पे, और उसका कुछ बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और रिटर्न कर देता है एक नया फंक्शन, बस दैट्स ऑल, इतना याद रखो, इतना सिंपल सा याद रखो आपके पास, है ना। फिर क्या करते हैं, ये तो मैंने क्या बना दिया, आपका फंक्शन डेकोरेटर बना दिया है, अब मैं क्या बनाता हूँ, दूसरा क्लास डेकोरेटर बनाता हूँ, इसका दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर डेकोरेटर्स के अंदर, तो एक था हमारे पास फंक्शन डेकोरेटर, बेसिकली डेकोरेटर ही फंक्शन डेकोरेटर है, और यहाँ पे हम बनाते हैं क्लास डेकोरेटर। क्लास डेकोरेटर हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास डेकोरेटर क्या, तो क्लास डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ क्लास एज एन इनपुट दिस टाइम एंड मॉडिफाइज और एनहेंस इट और रिटर्न्स अ न्यू क्लास सेम एज इट इज। वहाँ पे क्या था, फंक्शन ले रहा था, यहाँ पे क्या ले रहा है आपके पास, क्लास को ले रहा है, यहाँ पे क्या ले रहा है, क्लास को ले रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। कुछ ये एंड के टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे पाइथन के अंदर, डेकोरेटर्स वगैरह, इनको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। ये तो हो गया हमारे क्या, फंक्शन डेकोरेटर्स हो गए। अब आते हैं हम लोग क्लास डेकोरेटर पे। तो क्लास डेकोरेटर क्या सेम है, अब क्या लेगा, क्लास लेगा एज एन इनपुट के तौर पे और मॉडिफाई करने वाला उसका बिहेवियर। तो अब की बार क्या समझ सकते हो आप, थिंक ऑफ ए स्कूल एडिंग रूल्स टू एवरी स्टूडेंट ऑटोमेटिकली, स्टूडेंट इज सेम बट स्कूल डेकोरेटर एड्स बिहेवियर। क्या करता है स्कूल डेकोरेटर, क्या करता है, स्कूल का होगा आपका डेकोरेटर हो गया है, और जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, आपकी क्लास हो चुकी है। क्या हो चुकी है, क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग अलग रूल मुझे बनाने पड़ेंगे। ये तो क्या होगा, आपके पास स्कूल हो गया। यहाँ पे क्या आपके पास अलग अलग स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 1 2 3, तो ये क्या है आपके पास, ये अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए आपके, है ना। तो ये आपका क्या है, स्कूल है। सो दिस इज योर स्कूल, इनसाइड इट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 जस्ट वेट अ सेकंड। तो दिस इज लाइक दीज आर योर स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास डेकोरेटर का। क्या पढ़ रहे हैं, क्लास डेकोरेटर का, ठीक है। तो स्कूल क्या होता है आपका, स्कूल क्या होता है आपका, एक डेकोरेटर होता है। क्या होता है, क्लास डेकोरेटर होता है, क्लास डेकोरेटर। एंड दीज स्टूडेंट आर योर क्लासेस, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके पास, क्लासेस हो गए हैं, ठीक है। स्कूल क्या करता है, ये जो सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट तो सारे सेम है, वो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये स्टूडेंट ये स्कूल जो इनके लिए अलग अलग रूल्स निकालता है ना, हर एक स्टूडेंट के लिए। वैसे क्या करता है क्लास डेकोरेटर, हर एक क्लासेस के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो द स्टूडेंट इज योर क्लास एंड योर स्कूल इज योर डेकोरेटर विच एड्स सम बिहेवियर टू इट, ओके, एड सम बिहेवियर टू इट, दैट्स ऑल। तो एडिंग मेथड्स डायनेमिकली, यूज केस क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, क्लास डेकोरेटर का। मेथड्स को डायनेमिकली आप ऐड कर सकते हो, रजिस्टरिंग क्लास कर सकते हो प्लगइन सिस्टम से, कुछ सिस्टम्स को वैलिडेट कर सकते हो आप इसमें, राइट। जैसे प्लगइन सिस्टम बनाना हो, ORM मॉडल एनहांस कर बनाना हो आपको, रोलओवर फॉर क्लासेस बनाना हो, है ना। कुछ इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, चीज़ें बना सकते हो किसका, क्लास डेकोरेटर का यूज़ करके। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ चुका है, ठीक है, एक क्लास का एग्जांपल आ चुका है। तो दिस फंक्शन टेक्स अ क्लास एज एन इनपुट। ये देखो क्लास ले रहा है, और है ना, फंक्शन नहीं ले रहा, क्लास ले रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ एक लैम्बडा फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, लैम्बडा फंक्शन ले रहा हूँ, देख रहा देखो, लैम्बडा सेल्फ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हेलो फ्रॉम डेकोरेटर मेरे पास क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। तो एडिंग अ न्यू मेथड ग्रीट टू द क्लास डायनेमिकली, देखो इस टाइप से क्लास डॉट ग्रीट मैंने किया है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लैम्बडा फंक्शन मैंने यूज़ किया है और सेल्फ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। फिर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया क्लास को, मतलब मॉडिफाइड क्लास को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या यहाँ पे @ ग्रीटिंग, कुछ यहाँ पे ऐड, हम बिहेवियर ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो @ ग्रीटिंग में लगाऊंगा इसमें, इस वाले फंक्शन में जो भी मैंने नाम लिया था। तो @ ग्रीटिंग में मुझे क्या करना है, कुछ ऐड करना है। मैंने क्या कर दिया, क्लास पर्सन नाम से मैंने क्या कर दिया, डिफाइन करा है, ठीक है। तो क्लास डेकोरेटर के लिए @ ये जो भी आप लगाओ वहाँ पे फंक्शन डेकोरेटर, मतलब सेम @ करके आप लगा दो, ठीक है। फिर क्या किया यहाँ पे मैंने
क्लास पर्सन ले लिया है, फिर ओरिजिनल क्या लिया, क्लास एम्प्टी है जिसमें मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पास कर दिया उसको, तो पास एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली। फिर ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पी इक्वल टू पर्सन, और फिर मैंने क्या कर दिया, पी डॉट ग्रीट को प्रिंट कर दिया, पी डॉट ग्रीट ये वाली को यहाँ पे डिफाइन करा था ना मैंने, ग्रीट को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल मेथड बाय एडिंग डेकोरेटर्स, क्या विच इज ईजी। और मैंने कुछ एग्जांपल्स और भी लिख रखे हैं इसके, लेट मी शो यू समथिंग एल्स, कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। डेकोरेटर ये रहा आपके पास, ऑर्डर रजिस्टर सर्विसेज जैसे प्लगइन्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल विद कमेंट्स, इधर आ जाओ, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ इसका क्लास डेकोरेटर उसके नाम से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपके पास, इसके बाद इसका भी क्या करना पड़ेगा, ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, फंक्शन, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो ऊपर से उठा सकते हो, बिल्कुल सेम ही है। इसके आएगा यहाँ पे क्लास आ जाएगा, है ना। तो फंक्शन डेकोरेटर में क्या आता है, फंक्शन आता है, तो यहाँ पे डेकोरेटर होगा, फंक्शन डेकोरेटर में क्या आता है, ये आता है आपका as it is a function that takes another function as an input, okay। क्लास डेकोरेटर में क्या आता है, क्लास आता है बस, that's all, as an input। और या फिर एक्सटेंड करता है, फिर मॉडिफाई क्या करता है, उसके ओरिजिनल बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है वो, ठीक है, मॉडिफाई कर देता है उसके ओरिजिनल बिहेवियर को। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन में क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ यहाँ पे डिफाइन के नाम से, कुछ ऐड ग्रीटिंग्स के नाम से मैं कर लेता हूँ, बना लेता हूँ यहाँ पे ऐड ग्रीटिंग के नाम से मैंने बना लिया। आपकी बार मैं क्या लेने वाला हूँ, आपकी बार क्लास लेने वाला हूँ, तो CLS मैंने ले लिया यहाँ पे, कुछ और भी ले सकते हो आप, ठीक है, एज एन इनपुट के तौर पे। और मुझे क्या करना अब की बार में कि सेल्फ डॉट जो मेरी क्या रहेगी, एक एट्रीब्यूट में क्या कर रहा हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ, जैसे ग्रीट के नाम से, ठीक है। एक मेथड में क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो सेल्फ डॉट ग्रीट के नाम से मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ डॉट ग्रीट के नाम से मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, लैम्बडा फंक्शन में यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं करता हूँ, सेल्फ को कॉल कर देता हूँ, सेल्फ डॉट ग्रीट और सेल्फ डॉट क्लास ये रहने, एक बार मेरे को चेक कर लेता हूँ, सेल्फ डॉट ग्रीट है कि क्लास है, तो क्लास डॉट ग्रीट है ना, हाँ तो सेल्फ नहीं है बस, ठीक है, क्लास डॉट ग्रीट है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेल्फ ले लिया है। फिर इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। इसके अंदर मैं क्या करा सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। CLS डॉट ग्रीट एक फंक्शन मैंने लिया है यहाँ पे कुछ स्टेप से, या फिर हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे प्रिंट करके आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसको एज इट इज। लैम्बडा लिया, सेल्फ लिया, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रिंट करा देता हूँ, जैसे मान लो हेलो फ्रॉम द वर्ल्ड, या कुछ भी यहाँ पे डाल दो, हेलो माई नेम इज, ठीक है। क्योंकि नीचे प्रिंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन है मेरा, लैम्बडा फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता लैम्बडा फंक्शन, तो मैंने फंक्शंस वाले टॉपिक के अंदर बता रखा है कि लैम्बडा फंक्शन को कैसे बनाता है। ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, ठीक है। लैम्बडा यहाँ पे फंक्शन नेम किया मैंने ग्रीट के नाम से, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो माय नेम इज मोहितम के मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एडिंग न्यू मेथड ग्रीट टू द क्लास, मतलब ये क्या किया है, ग्रीट वाली जो मेथड है वो मैंने क्या करी, ऐड करी इस पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है, जो क्या करेगी, इस क्लास को डायनेमिकली बनाने वाली है बेसिकली, ठीक है, बनाने वाली है, राइट। फिर क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा इस पर्टिकुलर क्लास को मैं यहीं पे, ठीक है। रिटर्न क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे, ग्रेड को मैं सॉरी क्लास को मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा, जो यहाँ पे मैंने ली थी ना ऊपर, दैट्स ऑल। तो रिटर्निंग द मॉडिफाइड क्लास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्निंग द मॉडिफाइड क्लास, ठीक है। और ऊपर मैंने क्या किया है, एक मेथड यहाँ पे ऐड करी है, यहाँ पे मैंने क्या की है, मेथड इज एडेड बेसिकली टू द क्लास, या फिर नेम डाल सकते हो, उसमें ग्रीट नाम के ऐड करी है, डायनेमिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी है, बस दैट्स ऑल। ये आप लिख के छोड़ सकते हो, और मेथड का नाम लिख भी सकते हो, ग्रीट हो गया, कुछ भी XYZ उसमें क्या नाम दे सकते हो इसमें, ठीक है। फिर क्या करना है, @ लगाना है अपने, और फिर क्या करना है अपने ये जो फंक्शन का नाम है वहाँ पे डालना है, ऐड ग्रेटिंग, और इसके अंदर फिर क्या करनी है, चीज़ें लिखनी है, क्या करनी है, एक क्लास मुझे क्या करना पड़ेगी बनाने की। कोई भी पर्सन हो गया कि हेलो मोहित या हेलो करके ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। तो हेलो पर्सन के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में बेसिकली बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हेलो फंक्शन के क्लास पर्सन के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में क्या कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल क्लास को मैं करता हूँ वहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, इसको पास वाली स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ऐड ग्रेटिंग के अंदर। और फिर क्या करते हैं, जो क्लास मैंने बनाई उसको मुझे क्या देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, देखो यहाँ पे, दिस मीन्स पर्सन इक्वल्स टू एडिंग पर्सन, क्लास पर्सन लिया और उसने मैंने क्या कर दी, पास कर दी है। P इक्वल्स टू पर्सन, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया है, क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। तो P कर लो या फिर एनी पर्सन कर लो, मैंने यहाँ पे इक्वल टू पर्सन, इस वाली मेथड, इस वाली जो क्लास के अंदर मैंने क्या किया है, एनी पर्सन मिला, और फिर मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, कोई भी नाम आएगा मेरे पास तो वो क्या होगा, प्रिंट होकर आएगा, देखो क्या। तो P डॉट ग्रीट वाला क्या है मेरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेथड थी वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी। अब वो P यानी कि वो मेरा एनी पर्सन है, ठीक है। डॉट ग्रीट मेरी क्या है, एक मेरी मेथड है बेसिकली, उसको मैं आके पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। एनी पर्सन ये किसको रेफर कर रहा है पता है, ये कर रहा है इस क्लास, ये क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ एनी पर्सन, और वो यहाँ पे आ रहा है एज एन क्लास के तौर पे। एनी पर्सन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल लूँगा, और डॉट मैं क्या कर दूँगा, ग्रीट कर दूँगा, मैं क्या कर दूँगा, ग्रीट, बस दैट्स ऑल। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करा के देखता हूँ एक बार कि क्या रन हो रहा है, फिर कुछ एरर वगैरह आ रहा है।
बाउंड मेथड ऑफ ऐड ग्रीटिंग, कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, राइट? को रिजोल्व करते हैं हम लोग। लेट्स रिजोल्व दिस। क्लास डॉट ग्रीट इक्वल टू लैम्बडा, सेल्फ में मैंने किया था इसको। आई थिंक ये एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रीटिंग के अंदर ही मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इसको क्लास को रिटर्न कर रहा हूँ। नहीं, रिटर्न तो इधर ही आएगी। ऐड ग्रीटिंग किया मैंने यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं। चलो चेक, लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। लैम्बडा सेल्फ में मैंने डाला था इसको, ठीक है, रिटर्न कर दिया था क्लास को, रिटर्न कर दिया था क्लास को, फिर भी ठीक है। क्योंकि ऐड ग्रीटिंग ऊपर वाले लेवल पे है ना, तो ये मैं क्या करूँ, इसके अंदर रिटर्न नहीं होगा, ये बाहर रिटर्न होगा, या फिर इसके अंदर ही रिटर्न होगा। ये रिटर्न इसके अंदर ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, इसके अंदर ही होगा। फिर मैंने एट द रेट में इसमें ऐड किया पर्सन के नाम से, और फिर मैंने पर्सन डाल दिया है p इज इक्वल टू पर्सन। मैंने पर्सन डॉट ग्रीट मेथड को मैं यहाँ पे ऐसे कॉल करूँ क्या, इसके अंदर एक फंक्शन है मेरे पास। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है, अब ठीक है, नाउ इट इज़ राइट। तो हेलो माय नेम इज मोहितम, क्यों क्या हो रहा है, प्रिंट होके आ रहा है। सो ये मेरी मिस्टेक से, तो मैंने कॉल कर रहा था, मैं कॉल करने के टाइम में पैरेंथेसिस मैंने नहीं लगाया था, है ना, एज एन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी वो। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया मेथड को बाय एडिंग अ डेकोरेटर। ये जो मेथड थी वो मैंने ऐड कर दिया, डेकोरेटर ऐड करके मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस। तो ऐड ग्रीटिंग क्या है मेरे पास, मतलब ऐड ग्रीटिंग मेरे पास क्या है, एक कुछ ऐसे प्रिंट करेगी, पर्सन इक्वल्स टू ऐड ग्रीटिंग, और फिर वो पर्सन नाम जा रहा है वहाँ पे, जो भी आपका पर्सन वहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं जा रहा। बस ये क्या हो गया आपके पास, क्लास डेकोरेटर होगी, क्या होगी, क्लास डेकोरेटर, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्लास डेकोरेटर क्या करती है, क्लास में ऐड करने का, बिहेवियर में ऐड करने का होती है। तो ये क्या है, क्लास की मेथड है, एक फंक्शन होगा मेरा, ठीक है। लेट्स से कि इसको कुछ और तरीके से कराते हैं, विद अ डिफरेंट वे, है ना। सेम एग्जांपल को आपको क्या कराना है, कुछ दूसरे तरीके से आपको क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है ना। कैसे करा सकते हो एग्जीक्यूट, लेट्स ट्राई दिस वन। एक और मैं बता देता हूँ, टेक सिंपल फंक्शन इन प्लेस ऑफ लैम्बडा फंक्शन। ताकि बहुत सारे लोगों को क्या आता है ना, स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आता है कि एक लैम्बडा वैम्बडा का एक लाइन में इसने क्या लिख दिया है कि कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो, आपका एक अलग से फंक्शन बना सकते हो, सेल्फ डिफाइन करके, और रिटर्न कर देते हो वहाँ पे कोई भी नाम हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कर दो, अटैच कर दो उस पर्टिकुलर फंक्शन को इस वाले के साथ में, दैट्स ऑल, ठीक है। एक ऐसे भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एक रेगुलर फंक्शन जो होता है। वॉइस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। ये वॉइस का पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ग्रिड किया, एक फंक्शन बनाया ग्रिड के नाम से, ठीक है, सेल्फ लिया मैंने, और एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ किस सा, ग्रिड वाला फंक्शन, दैट्स ऑल। ये क्या करता है, ऐसे भी वर्क करता है यहाँ पे, देखो। तो यहाँ पे मैं ये लैम्बडा फंक्शन लिया मैंने, और ये एक नॉर्मल रेगुलर फंक्शन ले रहा हूँ, टेकिंग अ रेगुलर फंक्शन। तो दिस टाइम आई विल बी टेकिंग एन रेगुलर फंक्शन दिस टाइम, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस सेल्फ डॉट ग्रिड। रिटर्न कर दिया है, अच्छा रिटर्न में मैंने प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ना, ग्रिड सेल्फ तो करना चाहिए फिर भी, हाँ प्रिंट करा, नन आ रहा है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट की जगह रिटर्न करा देता हूँ, इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न करा दो सिंपल एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब ठीक है, तो नन नहीं आएगा आपकी बार में। तो ये हेलो माय नेम इज़ मोहितम की क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सेम आउटपुट आपका प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर फंक्शन लेके किया है, और नीचे एक मैंने क्या बनाई, एक मेथड बनाई है, ठीक है। अब मेथड इज़ एडिंग, तो सेम चीज़ है ना ये। तो दो वर्जन मैंने आपको बता दिए हैं एक सेम चीज़ के। ये जो ये वाली जो लाइन थी वो क्या थी, लैम्बडा फंक्शन को यूज़ करके थी, ये वाली क्या है, एक रेगुलर फंक्शन को यूज़ करके थी, ठीक है। बस दैट्स ऑल, इतना डिफरेंस याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये वाली एक लैम्बडा फंक्शन को यूज़ करके थी, एक सिंपल फंक्शन को यूज़ करके थी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एंड ऐड पर्सन क्लास, ये ठीक है, ये हमारी क्लासेस हो गई, जिसको मैंने क्या कर दिया था, पास कर दिया था, ठीक है। और फिर मैं आपको उसके अंदर डाल दे रहा हूँ, काम कर रहा अच्छे तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपकी क्लास डेकोरेटर हो गया, क्या हो गया, क्लास डेकोरेटर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसमें, बिल्ट इन डेकोरेटर्स भी आते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। कुछ क्या आते हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स आते हैं, जैसे एट द रेट स्टैटिक मेथड हो गया, है ना। स्टैटिक मेथड क्या होता है, एक मेथड होता है जो बिलोंग करता है किसको, क्लास को, ठीक है। बट वो उसका इंस्टेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू ए क्लास बट दैट डजेंट एक्सेस इंस्टेंस, यानी मतलब सेल्फ को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, खुद को वो एक्सेस नहीं कर सकता है, और क्लास डेटा या क्लास डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। देखो, थिंक ऑफ अ कैलकुलेटर इनसाइड अ क्लास, इट डजेंट वर्क बट डजेंट केयर अबाउट हु इज यूजिंग इट, राइट। सो इट्स लाइक कि द कैलकुलेटर इज नॉट इवन वर्किंग एंड द पर्सन हु इज यूजिंग इट, द कैलकुलेटर इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, लाइक कोई भी मुझे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस हो गए, हेल्पर फंक्शंस हो गए, है ना। तो यहाँ पे इन का यूज़ केस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एट द रेट स्टैटिक मेथड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या है डेफिनेशन में बता देता हूँ स्टैटिक मेथड की। क्या है मेरे पास,
एक मेथड होती है जो बिलोंग करती है किसको, टू अ क्लास, ठीक है, बट डजेंट एक्सेस इंस्टेंस। या फिर ऐसा समझते हो कि एक चीज़ है जो वर्क नहीं करती है और उसको कोई यूज़ कर रहा है तो उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ बिल्ट इन डेकोरेटर्स के नाम से पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बिल्ट इन डेकोरेटर्स, ठीक है। एट द रेट करके मैं बनाऊंगा, देखो यहाँ पे क्या करा था, एट द रेट करके जो भी क्लास वगैरह, यहाँ पे देखो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है ना। तो बिल्ट इन डेकोरेटर्स में एट द रेट स्टैटिक मेथड बताता हूँ मैं पहले, तो एट द रेट स्टैटिक मेथड या स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो ये क्या होती है, फॉर्मेट कर देता हूँ इसको मैं, फॉर्मेट, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास बट डजंट एक्सेस इंस्टेंस, मतलब खुद को क्या कर सकती है वो, एक्सेस नहीं कर सकती है और क्लास डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब खुद के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। बट हाँ, कौन यूज़ कर रहा है उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है आपके पास, स्टैटिक मेथड होती है। क्या होती है, स्टैटिक मेथड होती है, ठीक है। चलो इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, क्लास मैथ के नाम से बनाया है और उसने क्या दिया, क्लास क्रिएट करी है, ठीक है। फिर क्या किया, एक स्टैटिक मेथड डाली है उसके अंदर, डिक्लेयरिंग स्टैटिक मेथड डिफाइनिंग ऐड ए और बी, उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नो सेल्फ ए नो सेल्फ बी, ठीक है। और क्लास नीडेड, तो रिटर्न क्या कर दिया डायरेक्टली इसने, ए प्लस बी, मतलब सिंपल रिटर्न क्या कर रहा है, सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे, मैथ डॉट ऐड वाला फंक्शन मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैथ डॉट ऐड वाला क्या कर दिया इसने, फंक्शन कॉल कर दिया। देखो यहाँ पे ऐड वाला ये रहा, 3 और 5 इसने क्या कर दिया, वैल्यूज दे दी ए और बी की। तो कॉलिंग मेथड डायरेक्टली यूजिंग क्लास, तो क्या कर दिया, मेथड क्या कर दिया, कॉल कर दिया, किसका यूज़ करके, क्लास का यूज़ करके। स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड तो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, स्टैटिक मेथड सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं एक मैथ के नाम से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। फिर क्या करना आपको, एक स्टैटिक मेथड यहाँ पे पुटअप करनी है, ठीक है। एट द रेट स्टैटिक मेथड यहाँ पे डाल दो यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक मेथड डालने के बाद क्या कर दो, एक फंक्शन बना लो जो क्या करेगा, ऐड करेगा ए और बी। सेल्फ यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता, डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है ए प्लस बी को, ठीक है। ए प्लस बी को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को डाल दे रहा हूँ कहाँ पे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रिंट मैथ डॉट ऐड के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। डायरेक्टली मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर आएगा ये। स्टैटिक मेथड मैंने यूज़ किया, डिक्लेयरिंग स्टैटिक डिफाइन ऐड सम, ठीक है। ये मुझे इसके अंदर डिफाइन करनी पड़ेगी एक लेवल अंदर, और फिर ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी को। फिर मैथ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करा रहा हूँ उस मेथड को, उसके अंदर ऐड वाला कॉल करके उसकी वैल्यूज़ में पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आएंगी, अब देखो एक बार रन करा के देखता हूँ मैं कि वर्क करता है ही नहीं करता है। इट इज़ नॉट वर्किंग, क्यों नहीं वर्क कर रहा है वही क्लास मेथड। इनको ऊपर वाले को तो कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है, तब तक रन ना हो। फंक्शन और क्लास डेकोरेटर्स, स्टैटिक मेथड डिफाइन किया हमने, ऐड रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, और प्रिंट मैं यहाँ पे बाहर करा रहा हूँ। मैथ मैंने ऐसा स्मॉल नाम से देखो यहाँ पे किया है, मैथ का नेम गलत है, तो यहाँ पे मैथ डायरेक्ट डाल दो, मैं डॉट ऐड 3 और 5, ठीक है। फिर क्या कराते हैं, इसको रन करा के देखते हैं, चलो। हाँ अब कर रहा है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या कर रहा है वो, रिटर्न कर रहा है उसको स्टैटिक मेथड में। सॉरी सर अब क्लास नहीं कर पाऊँगा, कुछ काम आ गया है। ओके नो प्रॉब्लम विद दैट हर्षित, यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो। ये क्या हो गया, मेरे पास क्लास मेथड हो चुका है, ठीक है। क्लास मेथड हो चुका है, किसके अंदर, बिल्ट इन है ये, मैंने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे अलग से, कुछ फंक्शन वगैरह नहीं बनाया, फिर मैंने कुछ क्लास वगैरह नहीं बनाया, तो बस एक मैथ नाम से लिया था। और लेट्स से कि ये क्या कर रहा है, इधर मैं 15 दूंगा तो क्या कर देगा, बस रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखते हैं कुछ इस टाइप से। तो 20 मेरे पास क्या आ चुका है, आउटपुट मेरे पास आ चुका है। तो फॉर आर वॉचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, राइट। लाइक कर देना वीडियो को। फिर मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। एक बार मैं दोबारा से मैं क्या करता हूँ, समझा देता हूँ उसमें कि भाई एक ये जो चीज़ है ना क्लास मेथड, ये एक तरीके से समझो कि ये एक स्कूल का आपके पास क्या है, ऑफिस है, ठीक है। क्या आपके पास ऑफिस है जो क्या करता है, हैंडल करता है आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्या होती है चीज़ें होती हैं स्कूल से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या करता है, उसको हैंडल करता है। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को मैं ये हैंडल नहीं कर रहा, मतलब एक इंडिविजुअल क्लास को हैंडल नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है। वैसे और इतनी देर क्लास चलेगी, ये आधा एक घंटा और चलाएंगे,
ठीक है, बस ये टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, ये लास्ट है कुछ इसके अंदर डेकोरेटर्स के अंदर कुछ बिल्ट इन, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा प्रोजेक्ट कराने की ट्राई करूँगा। ठीक है, मतलब 10 बजे तक तो चलेगी चलेगी नो डाउट, 10 बजे तक तो हम लोग इसको रखने ही वाले हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, स्टैटिक मेथड हो गया। क्या हो गया आपके पास, स्टैटिक मेथड हो गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, यूज़र फैक्ट्री सिस्टम बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, किसका यूज़ करके, स्टैटिक मेथड का यूज़ करके। तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जो कैलकुलेटर वाला था वो था, वो मैं किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लास मेथड का यूज़ करके बता रहा हूँ, क्लास मेथड वाले का बता रहा था। ठीक है, तो एक स्कूल ऑफिस है जो हैंडल क्या करता है, रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू द होल स्कूल बट नॉट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया आपकी क्लास मेथड हो गई। तो स्टैटिक मेथड तो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लास क्रिएट की, डिक्लेयर किया स्टैटिक मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, ऐड ए और बी को, और नो सेल्फ और क्लास मैंने यहाँ पे डाली है, कोई नहीं डाली है वहाँ पे, और बस क्या कर दिया, कॉलिंग मेथड डायरेक्टली यूजिंग क्लास। ठीक है, जो भी मेथड थी वो मैंने क्या कर दी, क्लास का यूज़ करके मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुई स्टैटिक मेथड। फिर हम बढ़ते आगे दूसरी वाली मेथड पे, विच इज़ कॉल्ड क्लास मेथड। कौन सी हमारी क्लास, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है हमारी, क्लास मेथड। ठीक है, क्या होती है हमारे पास नेक्स्ट हमारी क्लास मेथड। तो क्लास मेथड इज मेथड दैट टेक्स क्लासेस एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्लासेस क्या होती है, क्लास मेथड क्या होती है बेसिकली, तो एट द रेट क्लास मेथड करके आएगी यहाँ पे, एट द रेट क्लास मेथड डाल देता हूँ मैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्लास मेथड, ठीक है, a class method is takes the class or you can say class, ठीक है, as the first argument, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेगी और क्या करेगी, काम करेगी, एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, मतलब क्लास लेवल का जो डेटा होगा उसके तक क्या क्या करने वाली है, वर्क करने वाली है। ठीक है, तो जो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था वो क्लास मेथड का था। ठीक है, मतलब जो स्कूल वाला था वो किसका था, इस क्लास मेथड का था, ना कि स्टैटिक मेथड का। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाओ, तो इट हैंडल्स द थिंग्स रिलेटेड थिंग्स ऑफ ए स्कूल ऑफिस। ठीक है, एक स्कूल ऑफिस है, वो क्या करता है, हैंडल करता है थिंग्स को रिलेटेड टू द होल स्कूल, नॉट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वही क्या होता है आपके पास क्लास मेथड होती है, वो क्या करती है, पूरे स्कूल का ध्यान रखती है, स्कूल का क्या करती है, ध्यान रखती है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का ध्यान रखती है, एक इंडिविजुअल क्लास का ध्यान रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास क्या है कि मैंने स्टूडेंट नाम से क्या करी है, क्लास क्रिएट करी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, स्कूल नेम में मैंने डाल दिया ABC, कोई भी स्कूल डाल दिया, एक वेरिएबल बना लिया जो कि शेयर बाई ऑल स्कूल करेंगे हम लोग स्कूल नेम। ठीक है, ABC वगैरह कुछ भी। फिर मैंने क्या करा है, एक क्लास मेथड डाली है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने क्या किया, डिक्लेयरिंग अ क्लास मेथड। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास रिफर्स टू द क्लास, देखो यहाँ पे इस बार मैंने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ किसको, क्लास मेथड को। और क्या कर रही है, रिटर्न क्लास डॉट स्कूल नेम को क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है, मतलब इसको, ये रहा क्लास डॉट स्कूल नेम को, इस वाले वेरिएबल को क्या कर रही है, वो रिटर्न कर रही है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे एक्सेसिंग क्लास वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर मेथड, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ किसको, स्टूडेंट वाली क्लास को मैंने डाला, और उसमें डॉट गेट स्कूल नाम से मैंने क्या बना था, एक मैंने क्लास मेथड बनाई थी वो मैंने डाल दिया, बस सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इस टॉपिक को करने के लिए ना आपको क्लासेस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उप्स के अंदर मैंने बताया था क्लास कैसे क्रिएट करना है और ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी आपकी तो प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम क्या है आपको आने वाली है। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कुछ क्लास में बना लेता हूँ, किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से मैं क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, सो क्रिएटिंग अ क्लास। देन मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि भाई वो जो स्टूडेंट्स है वो किस स्कूल के हैं, राइट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे किस स्कूल के हैं। ठीक है, स्कूल नेम से बना लो या फिर किस नेम से बनाओगे, कुछ भी नाम से बना लो, स्कूल नेम से विद मोहित के मैंने स्कूल नेम रख दिया है। ठीक है, लर्न विद मोहित मैंने क्या कर दिया, स्कूल नेम मैंने डिफाइन करके रख दिया है। अब ये क्या करना है, एक सिंपल वेरिएबल बनाया है, क्या क्या बनाया मैंने, सिंपल वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल विद स्कूल नेम। ठीक है, वेरिएबल विद स्कूल नेम मैंने क्या कर दिया है, इसको बना के छोड़ दिया है। अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टैटिक मेथड में क्या करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे एट द रेट, सॉरी क्लास मेथड में बनाता हूँ, ये रहा क्लास मेथड। ठीक है, अब इस क्लास मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिफाइन करता हूँ एक मेथड, क्लास मेथड में लेता हूँ। ठीक है, क्लास मेथड में लेता हूँ यहाँ पे किसके नाम से लेंगे हम लोग, लेट्स से डिफाइन कर देते हैं हम लोग, क्या करना है, स्कूल का नेम हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो गेट स्कूल नाम से कर दे, गेट स्कूल नेम नाम से मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कि भाई स्कूल का नाम मुझे चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लास को ले सकता हूँ एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CLS। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ऊपर मैं नहीं ले पा रहा था, यहाँ पे देखो मैंने कुछ A और B बस एक नॉर्मल क्या किया था, कुछ पास किया था, पैरामीटर पास किया था मैंने, सेल्फ को नहीं किया था, है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ किसको, क्लास को, एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड वर्क्स विद क्लास लेवल डेटा, मतलब इसके लेवल तक का डेटा को मैं कह सकता हूँ वर्क करता हूँ। मैं जैसे ये होगा स्कूल नेम एक्सेस कराना है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर CLS डॉट स्कूल नेम मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्या डाल दूंगा, ये स्कूल नेम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्या एक्सेस कराना है, बेसिकली क्या कराना है, क्या एक्सेस कराना है मेरे को, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर देने वाला हूँ, ठीक है। क्या कर देने वाला हूँ, प्रिंट कर देगा। इसको मैं रिटर्न करा दूँ यहाँ पे, क्या करा दो, रिटर्न करा दो। क्या CLS डॉट स्कूल नेम को क्या कर देगा, वो रिटर्न करा देगा, बस दैट्स ऑल। फिर नीचे जाके प्रिंट कर दो, ठीक है। क्या कर दो, नीचे जाके प्रिंट कर दो। तो ये क्लास हो गई पूरा, ये क्या हो गई, पूरी क्लास हो चुकी है, ठीक है। और नीचे जाके बस प्रिंटिंग का काम आ गया मेरा। तो प्रिंट क्या कर दो, किसको करोगे प्रिंट, तो मैंने क्लास का नाम लिया था, क्लास का नाम क्या था मेरा, स्टूडेंट नाम था, ये कुछ इस टाइप से। अब उसके अंदर एक मैंने मेथड ली थी, कौन सी मेथड ली थी, क्लास नहीं, ये रही थी गेट स्कूल नाम से मैंने मेथड ली थी। तो मैं यहाँ पे डेट डॉट लगा दूंगा इसका, और गेट स्कूल नेम से जो मेथड ली थी मैंने यहाँ पे, वो मैं प्रिंट कर दूंगा, बस ऐसे, दैट्स ऑल। इसको एक बार रन करा के देखता हूँ मैं, एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। हाँ ये कर रहा है, देखो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, स्कूल नेम प्रिंट होकर आ चुका है, ठीक है। जो कि मैंने क्या लिया था, इस वेरिएबल के तौर पे लिया था, ठीक है। ए और बी तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि और भी मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। देखो यहाँ पे A, B ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना। और रिटर्न के साथ में मैं क्या करा देता हूँ, प्लस में रिटर्न के साथ में मैं करा देता हूँ A+B, ठीक है। और स्कूल नेम तो ले रहा था इस टाइप से, जो मैंने पास कर दिया ऊपर वेरिएबल के तौर पे। और या फिर अलग से भी ले सकते हो इसमें, है ना, कि CLS डॉट A और B। या तो मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक बार मैं इसको रन करा के देखता हूँ, एक सेकंड रुको, जस्ट सेकंड। 15 और 10 का लेगा, हाँ लेगा, तो ठीक है। तो दोनों वर्क कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड में क्या था कि सिंपल A और B को मैं ले रहा था यहाँ पे। इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, एक किसको ले रहा हूँ, क्लास को भी ले सकता हूँ यहाँ पे, देखो खुद को, सेल्फ को भी ले लेता है यहाँ पे। तो ऊपर अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में क्या था, स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू द क्लास बट डजंट एक्सेस इट्स ओन डेटा, या फिर इट्स डजंट एक्सेस इंस्टेंट और क्लास डेटा। बट यहाँ पे हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, क्लास लेवल डेटा तक का हम ले सकते हैं। अब क्लास लेवल में मैंने ये देखो एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, तो उसके अंदर मैंने क्या कहता है, एक वेरिएबल बनाया था, तो इसको मैं बाहर से एक्सेस करके लेके आ सकता हूँ। अगर आप ऊपर यूज़ करने की कोशिश करोगे स्टैटिक मेथड में, ऐसे मैं स्टैटिक मेथड में सेम काम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे, और ऊपर मैं करता हूँ वेरिएबल बना लेता हूँ एक, है ना, क्लास के अंदर एनी नेम नाम से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। एनी नेम के नाम से बना लेता हूँ, मोहित नाम बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मोहित नाम मैंने बना लिया, किसमें, स्टैटिक मेथड में ट्राई कर रहे हैं सेम चीज़, ठीक है। फिर मैं CLS डॉट क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ CLS डॉट एनी नेम में ट्राई करता हूँ, ठीक है। एनी नेम में क्या करता हूँ ट्राई, देखो मेरे पास क्या आ गया, ओके, कॉमा नहीं लगाया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये स्टिल अभी क्या दिखा दे, इसका नाम ही पूरा अलग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ, ठीक है। क्या है, ये मेरी स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में क्या है, एरर आ चुका है मेरे पास, देखो, ठीक है। क्या आ चुका है, एरर आ चुका है, ठीक है। ये एरर आ गया मेरे पास, क्यों, क्योंकि मैं इसके खुद के डेटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, इसके क्लास का जो डेटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ मैं किसके अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर। बट सेम काम मैं किसके अंदर कर सकता हूँ, क्लास मेथड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ वो वाली चीज़, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो क्लास मेथड यहाँ से हटाओ, क्लास डॉट एनी नेम भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। और एनी नेम वाला एक वेरिएबल मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से समझो कि एक ऐसा कैलकुलेटर है जो काम तो नहीं करता है, बट जो इसको यूज़ करता है उससे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन इसको यूज़ कर रहा है, दैट्स ऑल। सिंपल रखो इस चीज़ को। ये क्या है, इसका मैंने एक एग्जाम्पल बता डाल रखा है ऑलरेडी, कि ये एक ऐसे स्कूल का ऑफिस है जो क्या करता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को मैनेज नहीं करता है, राइट, क्या करता है, पूरे स्कूल की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, ठीक है। क्या करता है, इस पूरे स्कूल्स को की प्रॉब्लम को हैंडल करता है कौन, क्लास मेथड। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम तो ये सोल्व कर ही रहा है, और बी को ये बाहर से भी ले आया है, क्लास लेवल की चीज़ें। यहाँ पर देखो स्कूल नेम में लिखा था ना, वो क्लास के अंडर में है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि भाई ये वो वाली चीज़ें भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्लास मेथड हो चुकी है, क्या हो चुकी है, क्लास मेथड हो चुकी है। तो हमने क्या कर लिया है, स्टैटिक मेथड पढ़ लिया, ठीक है, और क्लास मेथड पढ़ लिया, और इनके बीच का डिफरेंस हमने जान लिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट आए आपको तो आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट दैट वॉट एवर डाउट यू हैव, ठीक है। तो वहाँ पे काम चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। वैसे तो क्लास और यही थी हमारे पास, क्या थी, मैंने कौन कौन सी थी हमारे पास, ठीक है।
जैसे एट द रेट प्रॉपर्टी क्या करती है, एट द रेट प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन डेकोरेटर्स होते हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बिल्ट इन डेकोरेटर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इज अ मेथड टू एक्सेस लाइक एन एट्रीब्यूट, इज अ मेथड टू एक्सेस लाइक एन, तो डेकोरेटर क्या करता है, एट द रेट प्रॉपर डेकोरेटर क्या करता क्या है भाई, इज अ डेकोरेटर दैट अलाउस अ मेथड टू बी एक्सेस लाइक एन एट्रीब्यूट, एक मेथड को एक्सेस कर सकते हो एक एट्रीब्यूट के तरीके से। अच्छा कैसे कर सकते हैं, देखो थिंक ऑफ ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। थिंक ऑफ अ स्पीडोमीटर, यू डोंट कॉल अ फंक्शन टू गेट स्पीड, फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसकी करने के लिए, स्पीड को जाने के लिए। यू जस्ट नीड टू एक्सेस इट्स लाइक अ वैल्यू, यू जस्ट एक्सेस इट लाइक अ वैल्यू, बस उसको क्या कर दो, एक्सेस कर दो कि भाई कितनी स्पीड है एज एन वैल्यू के तौर पे, दैट्स ऑल। अब यूज़ केस कहाँ पे आता है दैट प्रॉपर्टी का, डेटा हाइडिंग में काम आता है, जहाँ पे आप क्या हो रीड ओनली एट्रीब्यूट्स हो, सिर्फ क्या कर सकता है यूजर रीड कर सकता है, कुछ कंप्यूटेड वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग सिस्टम बनाओगे आप, बैलेंस प्रॉपर्टी हो, मतलब कुछ बैलेंस रुपीज़ इतने बचे हुए तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो, एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम्स बनाने में इसका क्या होता है, यूज़ होता है, ओके। तो एट द रेट प्रॉपर्टी विल एट द रेट डेकोरेटर विल अलाउ अ मेथड टू एक्सेस लाइक एन एट्रीब्यूट सेल्फ रेडियस, तो सेल्फ डॉट रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, sorting radius of an object, and what is the topic, it is written like pi value into self dot radius, circle equal to 5, creating an object with a radius 5, so you can access it like an value, you just do not need to call the function again for measuring the exact speed of your vehicle, so you can just access it like an attribute, you can access it like an attribute, so making a method behave like an attribute. So I have made a method here, define area, self is defined here, no need to call as a function, okay. We will just directly return the 3.14 which is a pi value into self dot radius. What is the self dot radius, equals to radius is a constructor method, okay, which is defined under init. So you need to take a class first, you need to take two parameters, self and radius, and this is a simple basic example, man. The right property method, yeah, you can say decorator allows you to access, okay, access allows you to access what property, access like an attribute, you can allows method to access like an attribute. I'll just write down quickly, method to access like an attribute. So this is definition for you, let me write down it. So first of all I'll be calling I'll be making a class first of all, right, with the name of like circle, okay. Let's make a class with the name circle first, and after making the class what you need to do is you need to use a constructor method, right, constructor method. So you need to use init method, and there you need to take two things, one is self and one is method, one is radius, you can say that, and inside it what you need to do is you need to call self dot radius equals to radius, it's an attribute where you are storing the value of radius, okay. So it's like sorting radius in an object basically, and then after you can just call this particular, so okay, call this particular decorator at the right property, फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर सर्कल का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका मतलब सेल्फ डॉट यूज़ करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इनटू डॉट रेडियस, जो ऊपर मैंने क्या किया था, डिफाइन किया था, और इसकी सेल्फ डॉट रेडियस 3.5 यहाँ पे डाल दो, सेल्फ डॉट रेडियस से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, रेडियस वैल्यू कॉल्ड 5, दैट्स ऑल सिंपल मेथड बेसिकली, राइट। व्हाट इज द एरिया प्ले ऑब्जेक्ट के अंदर डाला था, तो सी डॉट एरिया मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ एरिया को, ठीक है, जस्ट लाइक एन एट्रीब्यूट, नॉट लाइक सी डॉट एरिया करके मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। 78.5 आ जाएगा। आई थिंक वॉइस इज कमिंग, जस्ट कंफर्म मी ऑन द स्ट्रीम राइट नाउ। We have find out here area, okay, c dot area, c is my decorator base, authentication system decorator base. To complete strict access required to reliable implementation, let's say login equals to false by default, required function को कर देगा यहाँ पे return wrapper का use, Flask का इसमें क्या, these things when we will will start with the Django, that will be very helpful, to integrate these topics in full stack project using Django and SQL. Data pipeline generator decorator combo. So right now we have just the only one topic, decorate the color, and the function decorator is, and I'll be writing here. So what are function decorators? Function decorators basically wrap a function with extra, as you can say, or you can also say extra features. So, function decorators,
Okay, if you want to know what are function decorator, basically it wraps a function with extra features. That's all. Another one, oh, what is decorator? If anybody asks you what is a class decorator, okay, class decorator basically adds or the class behavior, and I have already given you the example above. And what does basically static method does? Built-in methods. Number one, what does static method do? Static method do. What does class method do? What does property method or else property decorator? Okay, is an like utility function. Utility utility function inside the class. I am a new sub. So basic syntax of the list expression for ideal if conditions, if you have any. Okay, let's say if you want to find out the squares of any number, so you can just take an empty list and you need to take a loop for I in range method, let's say 5, and squares dot append method, and just you can print. So using list comprehension you can write like this, for example. तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो बस, दैट्स ऑल। एक वेरिएबल में डाल के एक ही एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आई एन टू आई फोर पे लूप डाल दिया आपने, और फिर क्या कर दिया, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने डाल दी है, क्या कर दिया आपने, प्रिंट कर दिया स्क्वायर्स को, ठीक है। बस कुछ नहीं था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। तो एक प्रोजेक्ट ले लो कि आपको क्या करना है, फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइमर विच आई ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड, login required. So you can make login required decorator, you can make a function execution, you can make even input validation decorator. Sanskaram University Delhi, okay, decorator. So negative value not allowed. If anybody puts negative value -3 squares, okay, so this is a good see, okay. Computer science is positive. Let's test these projects. Execution timer. We already have discussed the syntax. Projects. Execution timer.py. Add that timer. Okay. Import time. So it's importing a module. Ask if values are not allowed. Just paste it here. Hi Rohit. It's working for 2 seconds count, like how much time it is Python code or to execute. Let's quickly wait for 2.0 seconds this time. Okay, so sleep for 2. I'll just say sleep for. Okay, so this is one of its projects. Okay, the syntax is in a time module, built-in module. Next is data. So you need to, it will print like first login, if statement, else statement, simple thing. Login required decorator, like यूज कर दिया इसने, ठीक है। एज एन पैरामीटर एंड रैपर नॉट लॉग्ड इन करेगा तो फर्स्ट, एल्स में फंक्शन कॉल कर दिया है तो वेलकम तो पहले ये करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर रिटर्न फंक्शन कर दिया। एक चीज़ और प्रिंट कर सकता था, ये क्या कि लॉगिन फिनिश्ड लास्ट में जाके, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, लाइक 0 not anything, 15 no output. If I will just comment it and 225, it's working now, not allowed. फिर क्या है और इसमें प्रिंट फंक्शन नेम से ना फंक्शन, ये भी फंक्शन डेको यूज कर रहा है यहाँ पे भी, और ट्राई डेकोरेटर। लेट्स ट्राई login decorator.py 3 और +7 आर एज एन डेकोरेटर्स के तौर पे, ठीक है। सो दीज आर जस्ट फॉर चेकिंग द प्रोजेक्ट नेम्स ओनली,
the main